Good morning, student. Again, welcome in your bio class after your holidays. Today's is your first class after holidays. So, we have just connected previous topic. It was about kingdom plenty, where you have read classification of kingdom plenty, cryptogamous, phanerogames. Then cryptogames is again divided in thallophyta, bryophyta, pteridophyta, and you have read about phanerogames or seed-bearing plants, where you have read gymnosperms, angiosperm. Gymnosperms again divide in cycads and cornifernalis, and angiosperms is divided monocotyledons or dicotyledons. In this way, you have read kingdom plenty. This all topics is five kingdom system. We have already, or in previous lecture we have read about all animals or living organisms is classified in five kingdom system, where you have read plant kingdom, kingdom monera, and kingdom protista. You have read kingdom plantae. You have also read. Now today's topic is animalia. Animalia, it is the last kingdom Animalia, where you have read different type of classifications of kingdom Animalia and its examples. So, kingdom Animalia, we will kingdom Animalia. Animalia. Kingdom Animalia, it is called as kingdom of, इसका other name is kingdom of multicellular consumers. हाँ बेटा, इसको कंज्यूमर्स क्यों कह रहे हैं? आप दुकान वाला कंज्यूमर मत समझ लेना कि दुकान में हम शॉप में सामान लेने जाते तो वी आर कंज्यूमर्स. किंगडम मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स का मतलब कि वी आर हिट्रोट्रॉप्स, जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और प्लांट्स से प्रोडक्टिव और प्लांट्स से जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उनको हम लेते हैं, तो वी आर कंज्यूमर. आर यू क्लियर स्टूडेंट? दिस कंज्यूमर वी आर सेइंग इन रेफरेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम, कि हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होते हैं देन कंज्यूमर होते हैं. सो वी आर कंज्यूमर एंड ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. आर यू क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज kingdom Animalia. The word means the kingdom Animalia. What is the characteristic feature kingdom Animalia? First, it is eukaryotic, means developed cell, multicellular and heterotrophs. जो heterotropic terms के कारण ही it is consumer. Clear student? ये जो consumer terms आया है किसके कारण आया है? Due to presence of heterotrophic in nature. This cell do not have cell wall. सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल. और कैसे नेचर के होते हैं ये? मोबाइल. दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिजाइन डिफ्रेंशिएट फाउंड. अब इसको और भी डिफ्रेंशिएट किया जाए, जस्ट लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को भी डिवाइड किया है. तो मेजर फाइलम ऑफ एनिमल्स कौन कौन से हैं? मेजर फाइला ऑफ एनिमल. ठीक है, जो पूरी एनिमल्स को कितने उसमें डिवाइड किया है? इट इज बेसिकली 10 फाइला. कितने फाइला है ये? 10 फाइला. क्लियर? मतलब पूरे एनिमल्स को 10 फाइला में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट वी विल टेक नेम ऑफ द 10 फाइलम. फर्स्ट इज पोरीफेरा. इफ यू हैव योर notebook so you can write it also. पोरीफेरा. second, coelenterata. or other name is
निडेरिया, सी साइलेंट है इसमें, निडेरिया। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड वन इज नीडोफोरा, टेंटोफोरा, ठीक है, इसमें भी सी साइलेंट है, टेनोफोरा। नेक्स्ट प्लेटेहेलमिन्थीस, प्लेटीहेलमिन्थीस, again read it, platyhelminthes. Clear student? Next phylum Aschelminthes or Nematoda. Aschelminthes or other name is Nematoda. आप अदर नेम भी लर्न करोगे इसका, निडेरिया सिलेंट्रेटा का और एस्केलमेंथिस का नीमेटोडा। नेक्स्ट फाइलम एनीलिडा, एनीलिडा, it is number 6. According their classification, according their evolution, we have write their different phylum, उसके अकॉर्डिंग देयर कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम आगे बढ़ता जा रहा है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। नेक्स्ट 7 इज ऑर्थोपोडा, कॉकरोच वगैरह ऑर्थोपोडा। देन मोलस्का, ठीक है, एंड 9th one is Echinodermata, Echinodermata, and next phylum is Chordata, Chordata। फिर Chordata को अगेन डिवाइड किया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? सो Chordata और invertebrates and vertebrates are, ठीक है स्टूडेंट? सो दीज आर 10 phylum, basically 9 phylum, 10 phylum have especially Chordata और 9 phylum को नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड किया है और 10 phylum से फिर स्टार्ट होगा आगे Chordata। क्लियर स्टूडेंट? सो दीज 9 जो कॉलम्स एंड 9 phylum हैं, लाइक phylum 1 से लेकर phylum 9 तक ये आ जाते हैं। यहाँ तक कि किस में आ रहे हैं? नॉन वर्टिब्रेटा में, नॉन वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा, मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, इट विल बी कम इन इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर स्टूडेंट? तो इनवर्टिब्रेट्स। सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट phylum Porifera, the basic characteristic feature of phylum Porifera and its organisms and its figure also. So we will start Porifera. So I think here from this topic और जितना आपने अभी तक का रीड किया है, जितना आई हैव रीड यू हैव नो प्रॉब्लम। नाउ पोरीफेरा, फर्स्ट हम लोग फाइलम लेंगे पोरीफेरा। सो पोरीफेरा बेसिकली क्या है? दिस वर्ड मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ होल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होल प्रेजेंट, ठीक है, बॉडी में होल्स होते हैं, पूरी बॉडी में होल होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं पोरीफेरा। मीन्स पोर्स बेरिंग, पोरी मीन्स पोर और फेनेरा मीन्स बेरिंग, पोर्स बेरिंग। पोरीफेरा का क्या मीनिंग है? पोर्स बेरिंग। ये कैसे होते हैं नेचर में? These are non-motile animal attached to some solid support. Here see this diagram. Here this one Eucalyptilia, Sycon, Spongilla, ये क्या है? ये सब चीज़ ये हार्ड स्ट्रेटम से, किससे ये अटैच्ड है? ये स्पॉन्जिया, ये एक सबस्ट्रेटा है। ये क्या है? सबस्ट्रेटम, जिससे ये नॉन मोबाइल है, ठीक है। और दिस इज एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ऑस्कुलम,
क्या कह रहे हैं इसको, ऑस्कुलम, ठीक है। और ये छोटी छोटी सी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पिकल्स। क्या है ये, SPICULES, स्पिकल्स, और इट इज बेस। So these are some labeling. So you just learn labeling also. ये इसका फिगर, ये स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला और साइकॉन्स इज अ सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोरीफेरा। तो और सम अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी जस्ट टेक, होल आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, दिस लीड्स टू कैनॉल सिस्टम। अब ये होल है तो होल का क्या यूज़ है, होल उसकी बॉडी में एक कैनॉल सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है। और इस कैनॉल सिस्टम के थ्रू ये जो कैनॉल, ये जो होल्स हैं, इस होल के थ्रू वाटर बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स को क्या मिल रहा है, फूड और ऑक्सीजन, ठीक है। आपकी बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, क्लियर। इसी तरीके से लोअर एनिमल्स हैं ये, इनकी बॉडी में क्या है, ये पोर्स होते हैं, एंड through these pores it's formed canal system that help in circulatory water throughout the body and it's help to bring food and oxygen। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि कैनल सिस्टम यहाँ पे क्यों जरूरी है। कैनल सिस्टम एक बॉडी में सर्कुलेशन का काम कर रहा है, किसका सर्कुलेशन का काम, ऑक्सीजन और फूड का। दीज एनिमल आर कवर्ड विथ हार्ड आउटसाइडर्स लेयर और स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम में सिर्फ कुछ हार्ड कवरिंग है एनिमल के ऊपर। द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व वेरी मिनिमम डिफ्रेंसिएशन एंड डिवीजन इनटू द टिश्यू। हाँ बेटा भैया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बॉडी डिज़ाइन इस तरीके से होती है कि उसमें सेल का डिफ्रेंसिएशन बहुत कम है। 2 या 3 टाइप की सेल हैं जो क्या कर रही हैं, टिश्यू में कन्वर्ट हो रही हैं, और बहुत ही कम टिश्यू डिफ्रेंसिएशन है। क्लियर स्टूडेंट, आप लोग अभी रीड करोगे आगे क्लास 11th में कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, सेल सिस्टम है। सेल सिस्टम क्या होता है, सेल टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ ऑर्गन फॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो पोरीफेरा एक ऐसा फाइलम है जहाँ पर सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम डिफ्रेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू दिस टिश्यू, दीज आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। और इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पॉन्जेस। ये पोरीफेरा के मेंबर्स, ये सब पूरे क्या हैं, स्पॉन्जेस, ठीक है। इनका हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, लिविंग प्लेस, किस जगह पर वो रहते हैं, ठीक है। तो इनका हैबिटेट कैसा है, मैराइन, मतलब ये सब वाटर में तो होते हैं, वो भी मैराइन में, समुद्र में होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द पोरीफेरा। सो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पोरीफेरा में। नाउ थर्ड वन इज सीलेंट्रेटा। सो नाउ वी विल गो इन नेक्स्ट फाइलम, इट इज सीलेंट्रेटा और निडोटिनोफोरा। फाइलम सीलेंट्रेट्स का अदर नेम क्या है, सीलेंट्रेट्स का कॉलन, इसको सीलेंट्रेटा, द प्रोनाउंसिएशन इज सीलेंट्रेटा, और इसका अदर नेम इज टिनफोरा। सी साइलेंट है बेटा इसमें, ठीक है, सी भी है बट सी साइलेंट है, टिनोफोरा। इसको टिनोफोरा क्यों है, बिकॉज टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। टिनोफोरा क्यों है, बिकॉज टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। सो दीज आर 2 डायग्राम्स इंक्लूड सी एनिमोन और hydra. There are so many organisms in this group, but for examples we have given 3 some common coelenterate organisms. First is sea anemone, second is Coleoplana or hydra, clear student, and next examples is we will take here, next examples, Selenoplana,
एग्जाम्पल, सिलेनोप्लाना, PLANA, सिलेनोप्लाना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल्स, प्यूरोब्रैकिया, ब्रैकिया. These are some examples of टीनोफोरा. टीनोफोरा के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दे आर एनिमल लिविंग इन वाटर, हमेशा इनका हैबिटेट क्या है? वाटर. हैबिटेट मीन्स ये हमेशा वाटर पे ही मिलेंगे. दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफ्रेंशिएशन और मोर कॉम्प्लेक्स दैन पोरीफेरा. पोरीफेरा से इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी डिजाइन डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल रहा है. क्लियर? दीज आर कैविटी इन द बॉडी. द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ सेल, outer makeup cell on the outside of the body and other make the inner lining of the body. You see in this figure, hydra की 2 layers हैं, ठीक है. outer layer epidermis, here given epidermis, then बीच की layer mesoglea और लास्ट जो लेयर है वो गैस्ट्रोडर्मिस. और जो कैविटी है, ये कैविटी, दिस कैविटी इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. और टेंटिकल्स प्रेजेंट है, दैट्स मीन इट इज टेंटिफोरा. टेंटिकल्स प्रेजेंट, इसलिए इसको किस में इंक्लूड किया है? टीनोफोरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में टेंटिकल्स होगा, इसलिए ये ग्रुप का नेम ही, फाइलम का नेम ही टीनोफोरा है. ठीक है, इट इज मैराइन इन हैबिटेट. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे हैं पूरे? डिप्लोब्लास्टिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोब्लास्टिक? मीन्स डिप्लोब्लास्टिक हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिप्लोब्लास्टिc means 2 germs layer. 2 germs layer are present. 2 germs layer are present. That's the reason it is diploblastic in nature. Means कौन सी layer है? Epidermis and second gastrodermis. Epidermis, gastrodermis, 2 layer present है. That's the reason it is diploblastic. और इस तरीके का जो डिवीज़न है वो डिप्लोब्लास्टिक हैविंग 2 टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनिजम्स है कि टिश्यू डिफ्रेंसिएशन शुरू हो गया. यहाँ पे टिश्यू डिफ्रेंसिएशन, यस स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? समझ रहे हो कि ये डिप्लोब्लास्टिक क्यों है? क्योंकि इसमें 2 जर्म्स लेयर हैं. रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. नेक्स्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल. ठीक है, और sexes are not separated, means both sex organs present in same organisms. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही भी कह सकते हैं इसको हम. ठीक है, फर्स्ट मैराइन है, सेकंड टिश्यू लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली एक्सटर्नल एंड फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर sexes are not separated. Sexes are not separated. Clear student? सेक्स जो है सेपरेट नहीं होता, मीन्स बोथ सेक्स प्रेजेंट इन सेम बॉडी. क्लियर? और इसका एक नेम होता है हर्मोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल. क्लियर स्टूडेंट? सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ फाइलम टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स बेसिकली हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, सो ऑन. ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको. ये निडेरिया,
सिलेंट्रेटा और निटेरिया। अब आता है नेक्स्ट आपका फाइलम टिनोफोरा। टिनोफोरा और का बेसिकली क्या है, मैराइन हैबिटेट। नेक्स्ट आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज इट इज कॉल्ड एज फ्लैटवर्म। क्या कह रहे हैं इसको, फ्लैटवर्म्स। क्यों फ्लैटवर्म्स कह रहे हैं? फर्स्ट, body of animal in this group are far more complex design than in the two other group we have considered so far। मतलब जो अभी हम लोगों ने दो ग्रुप फाइलम रीड कर चुके हैं उससे प्लेटीहेल्मिन्थीज और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देयर बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बॉडी कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब किसी भी प्लेन से बॉडी को कट करोगे तो इट विल बी डिवाइड इक्वली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जस्ट लाइक योर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इट इज ऑल्सो बाइलेटरल सिमेट्रिकल। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की इसमें जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल। फर्स्ट आता है सेल लेवल, सेकंड आता है टिश्यू लेवल, थर्ड आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फाइलम है। यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? मतलब डिफरेंट फंक्शंस के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। क्लियर? सो दीज आर द ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम। सेकेंड है ये बाईलैटरल सिमेट्री। अभी आपको बताया लाइक ह्यूमन बीइंग। ठीक है, they have 3 layers of ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 layers of सेल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म्स लेयर 3 टाइप्स की है, 3 layers of cells, so it is ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्टूडेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिक टर्म्स हैं, यू जस्ट नो अबाउट इट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी आपने एक रीड किया है, डिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मीन्स 3 लेयर ऑफ सेल और 3 जर्म्स लेयर, 3 जर्म्स लेयर। ये बहुत एडवांस है। वी आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो हम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक में हैं और एडवांस है। ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट एडवांस। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है? दिस अलाउ आउटसाइड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। दिस इज, हाँ, इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी 3 जर्म्स लेयर हैं वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये 3 जर्म्स लेयर कब होते हैं? एम्ब्रियोनिक कंडीशंस पे ही। These allow outside or inside body linings. This is the third degree of tissue formation. However, there is no true internal body cavity or coelom. एक characteristic feature, no true internal body cavity or coelom. ठीक है, इसमें true internal body cavity और coelom नहीं है। In which well developed organs can be accommodated, जिसमें कि बट पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं। द बॉडी इज फ्लैटेड डॉर्सीवेंट्रली। बॉडी कैसी है? जस्ट लाइक रिवंस, फ्लैट। बॉडी इसकी फ्लैट होती है। ठीक है, लाइक इसके एग्जांपल्स क्या हैं? प्लानेरिया, ठीक है, फेसिकोला, हिपैटिका, टीनिया सोलियम। वी जस्ट गिव देयर diagram name and their structure also, in which well developed organs, meaning from top to bottom, flatted dorsiventral, flatted है, dorsiventral है। This is why these animals are called flatworm। flatworm क्या है?
यहाँ पे आप लोगों को दिए ना फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स क्या है कि बॉडी इनकी कैसी है, फ्लैटेड डॉर्सिवेंट्रली, फ्लैटेंड डॉर्सिवेंट्रली। क्लियर स्टूडेंट? बॉडी इसकी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेड है, दैट्स द रीजन इट इज इंक्लूड इन फ्लैट वॉर्म प्लेटीहेल्मिन्थेस। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स हैव फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लेनेरिया और पैरासिटिक एनिमल्स लाइक लिवर फ्लूक। इसमें दो तरीके का ऑर्गेनिजम्स है, पैरासिटिक नेचर, ये दोनों क्या हैं, पैरासिटिक हैं। ये कैसे हैं, ये पैरासिटिक इन नेचर। और ये जो प्लानेरिया है ये फ्री लिविंग मतलब ये अब फ्री, तो ये फ्री लिविंग है, इसका मतलब पैरासाइट नहीं है। और लिवर फ्लूक और टैपवर्म पैरासिटिक, मतलब इट इज सर्वाइव ओनली ऑन होस्ट बॉडी, ये सिर्फ होस्ट बॉडी में ही सर्वाइव कर सकते हैं। सो दीज आर द सम organisms of platyhelminthes. Examples are given there: planaria, liver fluke, tapeworm. So these are the examples of platyhelminthes. Now student, I think that you understood very well. और यदि कोई प्रॉब्लम है, you can discuss me. Okay student, thanks and have a nice day.